الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، اور خدا کے سامنے کسی کی سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی الا لمن اذن له، مگر اس کے لیے جس کی نسبت وہ اجازت دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا۔ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا۔ وهو العلی الکبیر، اور وہ عالی شان سب سے بڑی ذات ہے۔ کل کے درس میں غیر اللہ کی پکار اور غیر اللہ سے دعا اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی بیان ہوئی تھی۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک اور عقیدہ بیان فرمایا ہے، اور وہ عقیدہ ہے قیامت کے دن شفاعت کا عقیدہ۔ مشرکین کا نظریہ، مشرکین کی سوچ اور مشرکین کا موقف شفاعت کے ذریعے میں، شفاعت کے بارے میں بالکل مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ مشرکین کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہمارے بت ہیں جن کو ہم پوجتے پکارتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں جبری سفارش کا حق رکھتے ہیں، یعنی اللہ اگر کسی کو جنت نہ بھی لینا چاہے تو ہمارے جو یہ معبود اور الہ ہیں یہ زبردستی جو ہے وہ اللہ کے ہاں بات کر کے منوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ جبری شفاعت والا عقیدہ بالکل باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اس کی نفی فرمائی۔ اور جو بعد کے دوسرے درجے کے مشرک ہیں وہ جبری عقیدہ تو شاید نہ رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ شفاعت کے متعلق ایسا من گھڑت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، جو کچھ کریں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ ہمیں ہماری سفارش کر دیں گے، وہ ہمیں لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کی لایانی سی مثالیں بنا بنا کر پیش کرتے ہیں بطور دلیل کے۔ مثال کے طور پر چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، بغیر سیڑھی کے چھت پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا۔ تو اللہ سے اگر بات منوانی ہے تو راستہ اور سیڑھی بزرگ ہے۔ یا یہ ہے کہ کسی اعلیٰ افسر سے اگر ملاقات کرنی ہے تو پہلے چپڑاسی کو خوش کرنا پڑتا ہے، دروازے پہ بیٹھے دربان کو خوش کرنا پڑتا ہے، پہلے اس کے سیکٹری کو خوش کرنا پڑتا ہے، پھر بندہ افسر تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو خوش کرنا پڑتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے بزرگ ہیں جو اللہ کے قریبی ہیں، ان کو خوش کریں گے تو یہ آگے بات چلا لیں گے۔ تو جو من گھڑت قسم کے قضیے ملا کر اللہ جل جلالہ کی وہ ذات عالی جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں بنا بنا کر۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے تم مثالیں نہ بیان کرو۔ یہ جو تم مثالیں بیان کرتے ہو ان مثالوں میں ذرا خود تو سوچ لو۔ جس چھت کے لیے تم سیڑھی کو بطور شفیع یا بطور وسیلہ کے بنا کر دلیل بناتے ہو تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں
नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारक के पास हूँ तो फिर ऊपर चढ़ने की ज़रूरत क्या है। जब अल्लाह शारक के पास है तो तुम्हारा पीर तुम्हारी वो बात नहीं सुन सकता, तुम्हारा माबूद वो बात नहीं सुन सकता जो अल्लाह सुनते हैं। तुम ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ करोगे, बोलोगे, उस तक आवाज़ पहुँचेगी तो वो समझ पाएगा। और अल्लाह इतना करीब है, इतना करीब है कि दिल में पैदा होने वाले ख़याल जहन में बाद में आते हैं, अल्लाह को पहले आएगा। इसलिए ये मिसाल ना बयान करो। और दूसरी मिसालें तुम बयान करते हो, आला अफसर के लिए चपरासी को राज़ी करना पड़ता है, उसको खुश करना पड़ता है। आला अफसर वो है जो अंदर बैठा है कुर्सी पर, उसे कोई इल्म नहीं बाहर कोई कौन खड़ा है, किस काम के लिए खड़ा है, क्यों खड़ा है, कब से खड़ा है, कोई इल्म उसे नहीं है। वो अंदर अपने दफ्तर में बैठा है, बाहर से चपरासी उसको बताएगा तो तब उसे पता चलेगा। और अल्लाह की ज़ात यअलमु खाइनतुल आयुन वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह वो है जो आँख की हरकत को भी जानता है, जो दिलों में छुपा हुआ है उसको भी जानता है। फिर उस अल्लाह की ज़ात को एक अफसर के साथ तशबीह देते हो अपना गलत अक़ीदा साबित करने के लिए। तो ये मन गढ़ंत किस्म की बातें हैं। शिफ़ाअत है, और शिफ़ाअत का अल्लाह ने कुरान में उसूल बयान किया, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के यहाँ सिफारिश करे, किसकी ताकत है, किसकी क़ुव्वत है, किसका इख्तियार है, इल्ला बिइज़्नी, मगर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से। अल्लाह जिसके बारे में इजाज़त देंगे उसके मुताल्लिक़ सिफारिश होगी, बाकी किसी के मुताल्लिक़ नहीं है। और सिफारिश किसके इख्तियार जो है वो किसके मुताल्लिक़ देंगे, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में दूसरे मुकाम पर, वरज़िय लहू क़ौला, जिससे अल्लाह राज़ी होंगे, जिसको अल्लाह पसंद करेंगे उसके मुताल्लिक़ सिफारिश का हक़ होगा। ये क्या है कि ज़बरदस्ती जो है वो अल्लाह के यहाँ जाकर जो है वो मनवा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह के यहाँ सिफारिश का हक़ है। सबसे बड़ी सिफारिश जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। एक शिफ़ाअत कुबरा होगी तमाम इंसानियत के हक़ में, शिफ़ाअत सूग़रा होगी सिर्फ अपनी उम्मत के हक़ में। और इस शिफ़ाअत का हक़ लेने के लिए भी जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़कर सजदे में गिर पड़ेंगे और कई दिन तक सजदे में आवज़ारी करेंगे, दुआएं करेंगे। और फिर अल्लाह फरमाएंगे, इरफ़ा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर उठाइए, जो मांग पूरा किया जाएगा, सवाल कर सवाल पूरा होगा, चीज़ मांग तो पूरी की जाएगी। तो तब अल्लाह शिफ़ाअत का हक़ मरहमत फरमाएंगे। हाफ़िज़ कुरान भी सिफारिश करेगा, और इसी तरह आलिम दीन भी सिफारिश करेगा। वो बच्चा जो बुलूगत से क़बल फ़ौत हो गया वो भी वालिदैन की सिफारिश करेगा। ये सब साबित है। लेकिन ये जो सिफारिश का एक मुशरिकाना नज़रिया बनाया वो बिल्कुल गलत। फरमाया वला तनफ़अु शफ़ा इंदहु, अल्लाह के यहाँ किसी की सिफारिश कोई मुनाफा नहीं देगी, इल्ला लिमन आज़िन ला, मगर उसकी सिफारिश जिसके बारे में अल्लाह इजाज़त देंगे, हुक्म देंगे कि हाँ इसकी सिफारिश कर दो। हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम, अल्लाह ताला की हैबत और जलाल को बयान फरमाया कि वहाँ सिफारिश की किसी को होश ही नहीं होगी, वहाँ जलाल ही इतना होगा, वहाँ हैबत ही इतनी होगी, अपना आपको सब कोई भूल जाएगा, नफसी नफसी का आलम होगा। फरमाया हकीकत यह है कि अल्लाह के यहाँ से जब कोई हुक्म जारी होता है, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श के थामने वाले हैं, वो फरिश्ते जो आसमानों में हैं, जो ही अल्लाह ताला अपना हुक्म जिब्रील को सुनाते हैं तो उसकी हैबत से सारे फरिश्ते वहाँ बेहोश हो जाते हैं। हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है, जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं जिब्रील को तो उस वक़्त उसकी आवाज़ ऐसी होती है जिस तरह बड़ी सी चट्टान हो और उसके ऊपर बहुत बड़ी जंजीर खींची जा रही हो। जंजीर से जो आवाज़ पैदा होती है, इस तरह की जब आवाज़ पैदा होती है तो सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, दम बखुद हो जाते हैं। कौन फरिश्ते? जो हर वक्त वहाँ अल्लाह के पास होते हैं, उनकी ये हालत होती है। यहाँ तक कि जब अल्लाह पैगाम दे चुके होते हैं उसके बाद ये होश में आते हैं तो आपस में सवाल करते हैं, कालू माज़ा काला रब्बुकुम, क्या हुआ, तुम्हारे रब ने क्या कहा? फिर फरिश्ते कहते हैं कालुल हक़, जो कहा हक़ कहा, वह हुवल अलीयुल कबीर, और वो ज़ात बहुत बुलंद और बहुत बरतर है।